ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਕਰ। ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ। ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ। ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭੇਦ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੋਹੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੋਹੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗ।
मेरे मन हर राम नाम कर रंग। गुर तुठै हर उपदेसिया हर भेटिया राओ निसंग। रहाओ मुंद इयाणी मनमुखी फिर आवण जाना अंग। हर प्रभ चित न आयो मन दूजा भाओ सहलंग। हम मैल परे दोचारिया हर राखो अंगी अंग। गुर अमृत सरन बलाया सब लाथे किल विख पांग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मेलो संग। मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मेलो संग। मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान। बाहो बाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोय। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच आप संगतां हाजरियां भर के नतमस्तक हो के सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत होई है। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप आप जी ने श्रवण कीते हन। सो बड़भागे हो गुरु सवारियो
ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜਹੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਭੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਭੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ, ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੇ ਥਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾ ਬੇਲਾ ਕੋਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਾਈ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਕੈ ਮਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਭ ਲਾਗਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਵੇਲਾ ਕੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਹੂਰਤ ਉਹ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਸਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਇਕ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਇਕ ਕੈ ਮਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਭ ਲਾਗਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला चौथा। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठै रंग। गुर तुठै हर रंग चाड़िया, फिर बोहड़ न होवी भंग। सूही राग दे विच चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। सिक्खी अतै संगति, पार ब्रह्म का नमस्कारिया। ऐसे दीन दयालु सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह महाराज सूही राग दे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 731 तो प्रारंभ होंदा है ते 732 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा गुरु रामदास पातशाह महाराज नाम रूपी रंग की गल करते हैं कि जिन्हां उत्ते गुरु त्रुट जाता, गुरु मेहर के घर विच आउंदा है, उन्हां नूं फिर नाम रूपी रंग विच परमात्मा रंग दिंदा है। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं, सतगुरां की पावन बाणी विच दो रंगां की गल की गई है। एक रंग है कुसुंबे का रंग, एक रंग है मजीठी रंग। जिहड़ा कुसुंबे का रंग है ये देखण नूं बड़ा सोहना लगदा, बड़ी चमक हुंदी है, दूरों लाटा मारदा। पर जदों उस रंग नूं थोड़ी जी धुप लग जावे जां थोड़ा जा पानी लग जावे ना, तो वो रंग जिहड़ा है उतर जाता है। ते जिहड़े महकी पदार्थ ने, महकी पदार्थ कुसुंबे दे रंग दी न्याई हन। अज हन कल नहीं। जिहड़ा इहदे च गलतान हो जाता है वो अपने जीवन नूं फिर व्यर्थ गवा लैंदा है। जिवें सतगुरु महाराज बचन करदे, बाबा फरीद साहिबान जी कहंदे ने, हथ ना लाई कुसुंबड़ै जल जासी ढोला। बाबा फरीद जी दे बचन है ना कि भाई हथ ना लाई कुसुंबड़ा जल जासी ढोला। कुसुंबड़ा भाव जिहड़ा महकी पदार्थां वाला रंग है, कहंदे ये जिन्हों लावे हथ लावेगा यह जीव जिमें अग जीव नूं साड़दी है ना, इस तरह अंदर जिहड़ा है तेरी आत्मा हर समय विषय विकारां विच ही सड़दी रहेगी। ये जिहड़ा मजीठी एक है मजीठी रंग। मजीठी रंग ऐसा हुंदा है कि कपड़े नूं, जिस कपड़े नूं पक्का रंग मजीठी रंग चाढ़िया जावे ना, वो कपड़ा पट के लीरो लीर हो जाता है, खत्म हो जाता है, पर वो रंग नहीं उतरता गुरु सवारे। वो रंग कदे खत्म नहीं होंदा है। उस रंग नूं सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच भगती रूपी मजीठी रंग लई वरतना कीता है। परमेश्वर का नाम जिहड़ा ये मजीठी रंग की न्याई है, जिहड़ा पदार्थां का रंग है ये कुसुंबे के रंग की न्याई है। तो सतगुरु महाराज वचन करते हैं, रहाऊ वाली पंक्ति च सानू बेनती करने का तरीका दस रहे ने कि मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर तुठै हर रंग चाढ़िया, फिर बोहड़ ना होवी भंग।
कहते हे मेरे मन हर नाम रंग रंग कहते अपने आप नू तू हरि दे नाम रूपी रंग विच रंगना कर। वो रंग अपने मन नू लाना कर। ये रंग चढ़ लगता किवें कहते गुर तुठै हा रंग चाढ़िया। जदों गुरु तुठदा है, गुरु मेहर दे घर विच आउंदा है, गुरु की किरपा दे नाल गुरु ही फिर ये नाम रूपी मजीठी रंग चढ़ता है। जिन्हों ये भगती रूपी मजीठी रंग चढ़ जाता तो पातशाह कहते फिर बोहड़ ना होवी भंग, वो कदे खत्म नहीं हुंदा, रंग मुकदा नहीं आओ। मैकी पदार्थ अज ने ते कलू नहीं रहणगे, पर परमात्मा का नाम रूपी रंग जिन्हों लग गया ना, वो परमेश्वर की याद दे विच ही अपना सारा जीवन बतीत कर दिंदा है। तो हर समय प्रभु की रजा नूं भाणे नूं मिठा करके मानदा है। जिवें सतगुरु महाराज का फरमान है कि आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। तो परमात्मा की रजा विच फिर वो रहिंदे ने, भाणे नूं मिठा करके मानते ने। इसे प्रकार ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमान करते हैं, कहते ए मन सुंदर अपना हर नाम जिठै रंगरी, त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाल है सांगरी। मन दे परथाए पातशाह जी वचन करते ने, कहते ए मन सुंदर अपना हर नाम जिठै रंगरी। कहते इस सुंदर मन नूं कहते समझाउंदे ने, कहते अपने आप नूं भाई नाम रूपी मजीठी रंग विच रंगना कर। जिहड़ी तू अपने मन च चतुराई करदा है, चतुराई ने चतुरभुज पाई है, किसी सियाणप दे नाल उस मालक दी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभु नूं प्राप्त करन दे लई अपने आप नूं नाम रंग विच रंगना पवेगा। जिहड़ा नाम का रंग जिहड़ा गुरमुख जनां ने अपने मन नूं चाढ़ना कीता है, उन्हां दी उदाहरण दे के सतगुरु ने प्रेम की उदाहरण दे के समझाना कीता है। सतगुरु महाराज वचन करते हैं, कहते ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै, बूंद विहूणा चातरिको क्यों कर तृपतावै, नाद कुरंक है बेदिया सन्मुख उठ धावै, भवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। सतगुरु जी ने दृष्टांत दे के समझाया कि जे मछली का प्रेम है पानी दे नाल, मच्छी पानी तो बिना नहीं रह सकती है। इसे तरह ही अगली उदाहरण देना कीती है चातरिक बबीहे पंछी की। बबीहे पंछी की खुराक है सवांती बूंद। जदों तक उन्होंने सवांती बूंद प्राप्त नहीं हुंदी है, उदों तक बबीहे पंछी की प्यास नहीं बुझ सकती है। इसे तरह ही तीजी उदाहरण देना कीती, नाद कुरंक है बेदिया सन्मुख उठ धावै। जिहड़ा हिरन है, हिरन नूं आदत पई हुई है घंडे हेड़े का शब्द सुनन दी। जो शिकारी पुराने समय पुरातन समय दे विच जो शिकारी हिरन नूं पकड़दा सी, एक मिट्टी का घड़ा लैके उहदे विच सुराख कढ़ना छोटा जिहा, झाड़ू दे तीले पा के विच घुमाणे ते विचों फिर आवाज़ निकलदी सी, जिस आवाज़ नूं घंडे हेड़े का शब्द आख्या जाता है। ते हिरन ऐसा मदहोश हुंदा, मस्त हुंदा कि अपने आप ही शिकारी दे जाल विच आके फस जाता है। तो सतगुरु कहते जिस तरह घंडे हेड़े दे शब्द नाल हिरन का प्रेम है, मच्छी का पानी नाल प्रेम है, तो इस तरह ही जिहड़ा गुरु सवारियो सवांती बूंद जिहड़ा उहदे नाल बबीहे पंछी की प्यास बुझदी है, इस तरह रब दे प्यारे संत जन जिहड़े गुरमुख जन हन, उन्हां दा प्रेम है हरि दे नाल, हरि दे नाम नाल। तो हरि परमात्मा दे दर्शन दीदारे करके अगावै रजदे हन, तृप्त हो जाते हैं। इस तरह ही
भाई साहब भाई गुरदास जी के आप बचन पढ़ते हैं। भाई गुरदास जी फरमान करते प्रेम की उदाहरण दे के समझाते हैं तो गुरसिख ते गुरु का प्रेम, प्रभु दे प्यारे का प्रेम किहो जिहा। कहते ने चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले, चकवी सूरज हेत है मिल होण सखाले। नेहो कबल जन जाली है खिड़ मोह बिखाले, मोर बबीहे बोल दे वेख बदल काले। तो इस तरह अगली उदाहरण ने कहते नार पधार प्यार है माँ पुत संभाले, पीर मरीदा बिरहड़ी ओह निभ है नाले। ये चंद्रमा ते चकोर की प्रीति। तो इस तरह गुरु सवारियो जे बदल काले जिवें मोर काले बदलों नूं देख के पैलां पाउंदे ने, उन्हां दा प्रेम है बदलों के राही चाह चढ़ जाता है। इस तरह खिड़े जो सूरज चढ़ता है, कमल का फुल जिहड़ा खिड़ के दिखाउंदा है, अपनी खुशी ज़ाहिर करता है। तो सतगुरु कहते ने जिहदे माँ ते पुत का प्रेम है, घर वाली ते पति पत्नी का प्रेम आपस दे विच है। इस तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे हैं, प्रभु दे प्यारिਆਂ ਦਾ प्रेम इहो जिहा है कि अंत समय तक वो नाल निभण वाला है। जिहड़े इस प्रेम विच लीन हो जाते हैं, जिन्हां नूं ये नाम रूपी मजीठी रंग चढ़ जाता है, चाहे फिर गुरु सवारियो उन्हां नूं आरे नाल क्यों ना चीर दिता जाए, वो रंग कदे भंग नहीं हुंदा। जदों भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरन का फतवा तैयार किया गया तो भाई मती दास जी जलाद वाल देखते जलाद नूं कहण लगे कि ए जलाद तू अपना आरा तिखा कर तो मैं अपने मन नूं तिखा करांगा। तो अगों जलाद आखण लग्या कि मती दास जी आरे नूं मैं तिखा करांगा रेती दे नहीं, तू अपने मन नूं तिखा किवें करेगा। कहण लग्या कि मैं मन नूं तिखा करांगा गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी जपजी साहिब दे राही। ते जलाद ने गुरु सरे आरा चलाया, भाई मती दास जी जपजी साहिब दा पाठ शुरू कर दिता। इस तरह हथ पैर बधे हुए ने। ते गुरु सवारियो जदों इतिहासकार लिखते हैं, जो पंक्ति आई है पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान, एक वचन होर कीता सी भाई साहब ने, कहंदे ए जलाद जदों आरा चलाना आरा सीधा चलावी टेढ़ा ना चलावी। कहण लग्या क्यों डर गया, कहण लगे डरिया नहीं, जे आरा टेढ़ा चलिया विंगा चलिया तो दुनिया के लोग आखणगे कि गुरु का दीवान मती दास आरे नूं देख के डोल गया सी। इहो जे सिदकी सिख जदों पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान इत्थों तक पाठ पहुँचे आ। कहते ने शरीर के दो फाड़ हो गए सन, शरीर के दो फाड़ होए, पर ऐसी आश्चर्य खेड़ वापरी, ऐसी घटना वापरी, गुरु ने ऐसी रहमत की, ऐसा गुरु नाल प्रेम। गुरु सवारियो दोनों तन ते जपजी पढ़ै, देख सब कै अचरज बढ़ै। जपजी साहिब की पावन बाणी समाप्त हुई ना जदों, जात बहारा धीरज सुनियार अहरन मतभेद हथियार। फिर जदों आया सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जदों आखिया जिनी नाम ध्याया, गए मसकत घाल, नानक दे मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु आखिया वाहिगुरु आखिया तो उदों भाई साहब जी का शरीर शांत होया सी। ये है नाम दे रंग चरंगियां रूहां की अवस्था। तो गुरु सवारे अपने आप नूं आरे नाल चरा लिया, पर धर्म तो डोले नहीं। जला पुछते ने अंतम इच्छा पूछी जाती है कि मेरा मुख लोह पिंजर वाल किया जाए, क्योंकि लोह पिंजर दे विच
गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सन कि मैं अंतिम वेले अपने गुरु के दीदार करना चाहता हाँ। जिन्होंने इहो जिहा रंग चढ़ता है फिर गुरु सवारियो वो रंग कदे भंग नहीं होंदा है। ते सतगुरु महाराज कहते ने हर नामा हर रंग है। हरि का जिहड़ा नाम है ना, ये हरि का नाम रूपी रंग है। हर रंग मजीठा रंग रंगां विचों कहते सब तो जिहड़ा पक्का रंग मजीठी रंग है। कहते वो हरि परमात्मा का नाम कहते भगती रूपी मजीठी रंग सब तो पक्का है। तो ये रंग चढ़ता कित्थों है? तो सतगुरु कहते ने गुर तुठै हर रंग चाढ़िया फिर बोहड़ ना होवी भंग। कहते जदों गुरु तुरठदा है, गुरु मेहर के घर विच आउंदा ना, तो गुरु ही फिर नाम रूपी रंग नूं चाढ़दा है। गुरु ही अपने प्यारे नूं नाम रूपी रंग च रंगदा है। तो जिन्हां नूं रंग चढ़ जाता फिर गुरु सवारियो वो दुआरा फिर कदे भंग नहीं हुंदा, वो रंग कदे खत्म नहीं हुंदा है। भाव जिन्हां दे हिरदे अंदर प्रेम पैदा हो जाता ना गुरु के प्रति, वो गुरु लई अपनियां जानां हस हस के कुर्बान कर दिंदे ने, पर नाम रूपी रंग नूं कदे मुक्कण नहीं दिंदे हन। ते गुरु ऐसा है, इस करके गुरु दे लड़ लगना अति जरूरी है। गुरु साहबान ही साडे उत्ते बख्शिश कर सकते हैं। प्रेम ऐसा है, प्रेम क्यों जिहा होना चाहिए है? जे भगत रविदास साहबान जी नूं पुछो, भगत रविदास साहबान जी उदाहरण दिंदे ने, कहते ने मीन पकड़ फांकियो और काटियो रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना विसरियो पानी। कहते ने मछेरे ने मच्छियाँ पकड़ियाँ बाजार विच बेच दित्तियां, खरीदण वाला घर विच खरीद के लै गया, उहदे टुकड़े टुकड़े करके उहदा भोजन बना दिता। भोजन बनाया तो खाण वाले ने मच्छी खाना की। हुण जिहड़े मच्छी खांदे ने वो दसदे ने कि जदों मच्छी खाधी जाती है प्यास बड़ी लगती है। तो बाबा रविदास जी ने ये उदाहरण देना की, कहते देखो मच्छी ने अपने टुकड़े टुकड़े करा ले, दंदां नाल चब के अंदर चली गई, पर कहते अंदर जाके भी अपने प्यारे पानी नूं विसारना नहीं कीता। पानी नाल इन्ना प्रेम है मच्छी का। कहते इस तरह प्रभु दे प्यारे ने, प्रभु दे प्यारिਆਂ दे चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाण। भाई मनी सिंह जी का आपां शहीदी दिहाड़ा मना के हटे हाँ। भाई साहब ने अपना बंद बंद कटाया, जदों जलाद गुरु सवारे भाई साहब दे शरीर दे जदों वो जलाद गुट पासों कट्टण लगे ना, कहण लगे बंद बंद उंगलों तो शुरू हुंदा है, 3 जोड़ ने एक उंगल दे विच, कहंदे इत्थों शुरू करना कर। ते गुरु सवारे अपना बंद बंद कटा लिया, पर अपने प्रेम दे विच फर्क नहीं पैण दा। जिहड़ा गुरु नाल प्रेम सी ना, परमेश्वर नाल गुरु नाल प्रेम सी, उस रंग नूं उतर नहीं दिता। वो रंग उस तरह चढ़िया रहा, टुकड़े टुकड़े शरीर दे हो गए। तो गुरु सवारे इस तरह ढेर लग गया भाई साहब दे शरीर का, पर जदों तक सुखनी साहिब की पावन बाणी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि सुखनी साहिब की पावन बाणी का जाप कर रहे सी, जो तक पावन बाणी समाप्त नहीं हुई उदों तक भाई मनी सिंह शहीद जी का शरीर शांत नहीं होया सी। गुरु सवारे ये है प्रेम। जिन्होंने इहो जिहा रंग चढ़ जाता ना, गुरु ने जिन्हों ये नाम रूपी रंग चढ़ना किया, फिर वो रंग कदे भी भंग नहीं हुंदा है। वो हर समय मालक की याद विच गुरु के प्रेम विच अभेद होके गुरु गुरु जपदा, कदे भी गुरु नूं त्यागदा नहीं है। इस तरह वो ये नाम रूपी रंग च रंगिया हुंदा है। रहाओ मुंद ए आणी मनमुखी फिर आवण जाना अंग। हुण रहाऊ वाली पंक्ति च गुरु साहबान जी उस मनमुख जीव इस्तरी की गल करते हैं, जिहड़ी मनमुख जीव इस्तरी ने अपने पति परमेश्वर नूं विसारिया होया है, जिहदा अपने पति नाल प्रेम नहीं है,
प्रेम तो विहूणी है, ਉਹਦੀ हालत सतगुरु जी इत्थे दस रहे ने। मुंद इयाणी कहते, मुंद इयाणी, इयाणी बेसमझ जिहड़ी जीव इस्तरी जिन्हों किसी प्रकार की सोझी नहीं है, वो मनमुखी है, मन की मर्जी करने वाली है, हर समय धर्म तो उल्टे कर्म करती है। कदे अपने पति परमेश्वर को चेते नहीं किया, पति नाल प्रेम नहीं करना किया। हालत कैसी किहो जी हो गई, कहते फिर आवन जाना अंग, कहते फिर उस जीव इस्तरी का जिहड़ा जम्मण मन का चक्कर है ना, वो कट्टिया नहीं जाता। वो बार बार जन्म लैके संसार में आउंदी है तो मर के चली जाती है। ये आवागुण का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हुण ये नहीं कि अज मनुखा दी मिली है तो कल नूं भी सानू अगे भी मनुखा दी मिल, नहीं। ये तो गुरु सवारे साडे अंतिम सवासां की खेड है। जिथे साडा अंतिम सवास टिकिया होवेगा ना, उहदे मुताबक सानू अगला शरीर प्राप्त होना है। जिथे साडी सुरती अंत वेले रह जानी है। जे सुरती करतार दे विच रह गई, सुरती गुरु दे विच रह गई, तो आपां फिर गुरु चरणों में जाके समा जावांगे, जम्मण मरण तो रहत होवांगे। पर जे गुरु से सुरती साडी भंग हो गई, सुरती साडी पुत्रां विच, धीआं विच, कारोबार दे विच सुरती साडी इधर उधर चली गई, तो सच जाणिओ फिर ये जिहड़ा 84 दे गेड़ विच आपां दुआरा घुम्मण करांगे, साडा ये गेड़ मुकना नहीं फिर। इस करके पर सतगुरु कहते मनमुख जीव इस्तरी है, अजान है, बेसमझ है, इन्हूं किसी प्रकार की सोझी नहीं है। जिस करके ये जीव इस्तरी बार बार कहते संसार विच इहदा आण जाण चक्कर चलिया रहिंदा है। इस तरह कहते ये बार बार जमदी है तो बार बार मरदी है। हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा भाओ सहलंग। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते इस जीव इस्तरी की हालत कैसी है कि हर प्रभ चित न आयो। जिहड़ा हरि परमात्मा साडे दुखां नूं खत्म करने वाला है, हरि परमात्मा साडी पालना पोषणा करने वाला है, हरि परमात्मा हरेक प्रकार की साडी संभाल करता है। कहते उस हरि परमात्मा इस जीव इस्तरी चित ना आए, चित विच नहीं आया। फिर हालत कैसी, मन दूजा भाव सहलंग। कहते मन दे विच दूजा भाव तो दवैत दुबदा विच बसिया, एक परमेश्वर नूं छड्ड के थावां थावां ते जाके अपना सीस झुकाना। रब एक है पर मनुख ने अनेकों रब बना दिते। परमात्मा एक है। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सब तो पहला एका सतगुरु ने बाणा किया, एक ओंकार। आप कई बार एक ओंकार इकट्ठा पढ़ते हैं, एक वखरा है तो ओंकार वखरा है। एका परमात्मा एक है, ओंकार प्रकाश रूप है। जो आप गुरमुखी पढ़ते हैं, पंजाबी भाषा पढ़ते हैं, पंजाबी भाषा गुरमुखी दे विच ते गुरु सर जो 35 अखर पढ़े जाते, ऊड़े का मुख खुला है, बंद है, ऊड़े का मुख बंद किया होया है। पर जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते तो ऊड़े का मुख खुला है। कारण की है कि गुरु अर्जन देव महाराज को छाई मुक गई सी? नहीं गुरु सवारिओ, छाई नहीं मुकी। असल च गुरु साहिबान ने समझाया किहड़ा एक ओंकार है ना, ओंकार दे विचों ही सब कुछ पैदा हुंदा है ते ओंकार दे विच ही सब कुछ जाके समा जाता है। ते परमेश्वर एडा वड्डा है, एक निरंकार है। ते मनुख ने अनेकां रब बना दे, थावां थावां ते जाके अपना सीस झुकांदा फिरदा है। कोई पत्थर पूजक बनया फिरदा, कोई गुरु कबरां की पूजा करता है, कोई 2 ईंटां रख के उहदे उत्ते दीवे जगाण लग पैंदा है। इहो जे कर्म कांड मनुख कर रहा है।
पर गुरमत दे विच नहीं। गुरमत कहती है जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रेस सजै बत, गोर मड़ी मठ भूल न मानै। कहते पूर्ण प्रेम प्रीत सजा व्रत, गोर मड़ी मठ भूल न मानै। कहते गोड़ मड़ियाँ इत्यादक इन्हों भाई भुल के भी नहीं मनना करना, मनना तैं केवल एक जोत अखंड जोत निरंकार जोत, निरंकार जोत नूं ही मत्था टेकना है, वो तो बड़ा कोई है ही नहीं है। इस करके गुरुदेव जी वचन करते हैं, कहते पर इस जीव इस्त्री दे चित चेते विच हरि परमात्मा नहीं आया। हालत दी कहो जी हो गई कि मन दूजा भाव सहलंग, एक परमेश्वर नूं छड्ड के देवी देवतियां की पूजा करदा, मड़ियां मसाणा की पूजा करदा। इहदे विच ही कहंदे ये जीव इस्त्री लगी हुई है। हम मैल परे दोह चारिया, हर राखो अंगी अंग। गुरु पातशाह कहते हैं कि ऐसे मालक प्रभु के चरणों च तां बेनती करनी बड़ा आउंदी है। बेनती किवें करनी है तो सतगुरु कहते इंज हाथ जोड़ के घगिया के बेनती करो कि परमेश्वर जी हम मैल भरे दो चारिया, असी मैल दे भरे हुए हाँ, अवगुणां दे भरे हुए हाँ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। हम मैल भरे जियो मैले, बारहो निर्मल। बारहो ता निर्मल जियो मैले, तिन्नी जन्म जूए हारिया। ये तिसना बड़ा रोग लगा, मरण मनो बेसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही बेचारिया। ते गुरु सवारे अंदरों आपां जियो मैले बाहरों निर्मल। आम तौर पर आपां देखते हैं मनुख बाहरों देखण नूं बड़ा सोहना लगता है, सुंदर वस्त्र पहने हुए ने, शरीर की सफाई की हुई है। आपां कहंदे बड़ा सुंदर, इहदे नैन नक्श सोहणे ने, बड़ी सफाई रखता है। पर गुरु सवारे खेड़ अंदर दी है। जे साडा अंदर शुद्ध नहीं तो बाहरला लिबास गुरु के दर ते प्रवान नहीं है। जेड़े गुरमुख जन हन वो जियो मैं जियो निर्मल, बाहर हो निर्मल। बाहर हो तो निर्मल, जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी। उन्हों का जीवन फिर इहो जिहा हुंदा कि अंदरों भी निर्मल तो बाहरों भी निर्मल शुद्ध हुंदे ने। पर इत्थे सतगुरु वो सानू बेनती करन तरीका दस रहे ने। कहंदे इस तरह बेनती करो कि परमात्मा हम मैल भरे दो चारिया, असी मैल नाल भरे हुए हाँ, अवगुणां नाल भरे हुए हैं। साडे मन नूं जन्मां जन्मांतरां दी मैल लगी। समान को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्याहो, खनली धोती उजली ना होवई, जे सो धोवण पाहो। इहो जी साडी हालत है। कोलू वाला जिहड़ा कपड़ा है, लीर है, उन्होंने सैकड़े वारी हज़ारां वारी साबण ला ला के धोना करिए तो गुरु सवारियो उहदे दाग नहीं उतरते हैं। इस तरह साडे मन की हालत भी इहो जी है। पातशाह कहंदे हम मैल भरे दो चारी आ, असी मैल ना भरे हुए हैं, दो चारी हाँ। पाव धर्म तो उल्ट कर्म करने वाले हाँ, माड़े कर्म करने वाले हाँ। हर राखो अंगी अंग, ये सारियां दे अंग रखक परमेश्वर आप जी सारे रखिया करने वाले हो। असी भी तुहाडी शरण तकना कीती है, आप जी साडी भी रखना करो। गुर अमृत सरन बलाया, सब लाथे किल विख पंग। अगली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते हैं, जो गुरु के चरणों च आके बेनती की ना कि पातशाह सी सानू जन्मां जन्मांतरां दी मैल लगी हुई है, विषे विकारां विच आपां गलतान हाँ,
किरपा करके पातशाह जी सानू शुद्ध करना करो, साडा अंतःकरण शुद्ध हो जावे, साडे हिरदे अंदर परमात्मा दे नाम दा वासा हो जावे। ये सतगुरु साडे उत्ते बख्शिश करो। जदों गुरु दे चरणां 'च आके बेनती कीती, गुरु की करदा? गुरु सिख दा इशनान कराउंदा। तन दा इशनान तां आपां घर विच बह के कर लैंदे आ, तन दी मैल तां आपां सारे उतार सकदे आ। गुरु सिख दा इशनान करांदा, गुरु लाउंदा मन दी मैल। गुरु मन दी मैल लाउंदा ते जिहदे राहीं फिर जी सिख दा हिरदा बिल्कुल शुद्ध हो जांदा, मन साफ हो जाता है। तो गुरुकुल की है? कहते गुर अमृत सर न भुलाया। अमृत का सर सरोवर है गुरुकुल। जिहड़ा सिख गुरु की शरण में चल के आउंदा ना, गुरु बख्शिश करदा ते गुरु उन्होंने गुरु सवारियो नाम रूपी सरोवर में सतगुरु इशनान कराउंदे ने। जिन्हें नाम रूपी सरोवर में इशनान कर लिया गुरु की किरपा दे नाल, गुरु के उत्ते की हुंदा है? कहते सब लाथे किल विख पंग, जिन्ने भी कीते हुए समूह पाप ने। पंग चिक्कड़ दी नहीं है, चिक्कड़ दी ने जिहड़े सन विषय विकार इत्यादक। कहते वो सतगुरु रूपी सरोवर में इशनान करन दे नाल कहते ये सारे लथ जाते ने। भाव जिन्ने जीव ने पापां की गिणती की गई है, ब्राह्मण कैली घात कंजका, अणचारी का धान, फिटक फिटका कोट बदिया, सदा सदा अवमान। ये 12 ते वधीक बाणी विच पातशाह ने बचन कीते ने। जिहड़े ये पाप ने ये सारे पाप लथ जाते हैं, गुरु ला दिंदा है। जिहड़ा गुरु की शरण में आ जाता है तो पापा रूपी चिक्कड़ उहदा दूर हो जाता है। उस तरह वो शुद्ध हिरदे वाला बन जाता है। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। अखीरली पंक्ति च धन गुरु रामदास पातशाह महाराज बचन करते हैं। कहते इस तरीके दे नाल उस प्रभु दे चरणां च, गुरु दे चरणां च बेनती करो कि हर दीना दीन दयाल प्रभ। दीना दीन जिहड़ा कंगालां दा कंगाल है, अत दा गरीब। कहते हे दयालु प्रभु जी, मेरे उत्ते कंगाल उत्ते दीन उत्ते आप जी रहमत करो। ये बख्शिश करना करो जिथे तुहाडी सत संगत हुंदी होवे, जिथे सत दी भली प्रकार विचार हुंदी होवे, वडियाई हुंदी होवे। मैनू उन्हां सत संगी पुरुषां नाल मिलना करो, मैनू सत संगत बख्शना करो। क्योंकि दीन कहते ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी आपां पावन बाणी पढ़ते हैं, बहुत बारी दीन शब्द आउंदा है। दीन शब्द दीन धर्म नूं भी कहते ने, दीन गरीबी नूं भी कहते ने, ते दीन जिहड़ी है ये निमरता लई भी शब्द वरतिया जाता है। जिवें सतगुरु दे बचन ने कि दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। सुखनी साहिब की पावन बाणी विच फिर सतगुरु जी कहते ने दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जन की आप, तरन तारण हर निध, दुख न सकै बेआप। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेरे। बहुत सारे प्रमाण आउंदे ने। ते दीन शब्द जिहड़ा निमरता का प्रतीक, दीन शब्द गरीबी दे लई वरतिया जांदा। दीन शब्द गुदीन का अर्थ धर्म भी बनता है। इत्थे सतगुरु निमरता वाले वचन कर रहे हैं कि मैं अत दा कंगाल हाँ, गरीबां दा गरीब हाँ,
मेरे मालक जी मेरे उत्ते बख्शिश कर, रहमत कर। हे दयालु प्रभु जी सतसंगत मेलो संग, जिहड़े सतसंगी पुरुष हन सतसंगत की मैनू संगत बख्शना करो, ताकि उन्हां दी संगत विच बैठ के मैं आप जी दा जस कर सकां। मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। गुरु पातशाह जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते मिल संगत हर रंग पाया। जिहड़ा हरि दा नाम रूपी रंग है ना, ये कित्थों मिलदा? गुरु की संगत विचों जी। लाल रंग तिसको लगा सोई बड़ भागा, मैला कदे ना होवे नह लागै दागा। फिर वो कदे मैला नहीं हुंदा, दाग नहीं लगदा, वो पक्का रंग हुंदा है। वो पक्का रंग गुरु की संगत विचों ही प्राप्त हुंदा है। संगत विच आके ही कहंदे भाई मिल संगत हर रंग पाया, संगत विच आके हरि दे नाम रूपी रंग नूं प्राप्त कीता। जन नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहंदे भाई मन तन रंग ऐ जीव, तुम ही अपने मन नूं ते तन नूं इस भगती रूपी मजीठी रंग विच सतसंगत रूपी रंग च रंगना कर, ताकि तैनूं भी वो नाम दा रंग चढ़ जावे। जिहड़ा रंग एक बारी चढ़ गया फिर दोबारा गुरु सवारे उतरदा नहीं है। ये सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं